Dear students, we have already done biotic components of the environment. Now, let us begin with the abiotic components of our environment. So, biotic components cannot live in isolation, they need to interact with the abiotic environment. Without interaction, living organisms or living components of the environment cannot exist. Now let's see the abiotic components. They are the physical conditions को include करते हैं ये. They are non-living materials that affect the growth, maintenance and reproduction of living components and can interact with each other. So abiotic components are very important for the existence of living organisms. Abiotic components are water, air, light, temperature, soil, rocks, etc. Anything which is non-living surrounding us with which the living organisms interact is the abiotic components. They are all examples of abiotic components. These non-living components form the physical or abiotic environment in nature. Let us study about them in detail one by one. Let us see about water. So in this paragraph, importance of water that you all know is written. Water is essential for the survival and growth of all living organisms. Without water we cannot survive. All organisms need water for its growth and survival. Water is needed and used for drinking, bathing and cooking, etc. Very simple. Then animals and plants cannot survive without water. It is used for irrigation of crops. Crops को भी पानी चाहिए for growth, development. Humans and other animals need water for different activities of their life. You can think about them. Different activities कुछ लिखी भी हैं ऊपर. Human being जिसके लिए यूज़ करता है water को drinking, bathing, cooking etc. और भी आप बहुत सारी सोच सकते हैं. तो basically you can write three importance of water needed for survival and growth, for drinking, bathing, cooking, for irrigation of crops. Now rainwater harvesting की अगर बात करें, because water is important, तो पानी हम जहाँ से भी हम स्टोर कर सकें पानी को हार्वेस्ट कर सकें हमें करना चाहिए. हार्वेस्ट जनरली क्रॉप के लिए भी यूज़ होता है ना वर्ड. क्रॉप हार्वेस्टिंग, जब मेच्योर हो जाती है क्रॉप उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, कट करते हैं, ठीक. फिर उसके सीड्स जो हैं उसको स्टोर कर लेते हैं, या फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स को स्टोर करते हैं, यूज़ करते हैं. उसी तरह से रेन वाटर को भी हम हार्वेस्ट करते हैं और करना चाहिए. ना मेथड क्या है इसके लिए? लेट्स सी द मेथड. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है क्या? यू कैन सिंपली डिफाइन इट. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वे to collect rainwater when it rains. So it's a method of collection of water during rainy season. Rainwater can be stored, store कर सकते हैं उसको above the ground or underground and then used later. तो हार्वेस्ट हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसको उस समय तो कर लेंगे, जब ज़रूरत होगी तब उसका इस्तेमाल करते हैं. दिस हैपन्स नेचुरली इन ओपन रूरल एरियाज़. रूरल एरियाज़ में, गांव में आप देखते हैं कि ठीक है बड़े बड़े बहुत डिचेस हैं, गड्ढे हैं, पॉन्ड्स हैं,
वहाँ पानी रेन वाटर स्टोर हो जाता है, बाद में यूज़ किया जा सकता है उसको। हाउएवर इन कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, भीड़ भाड़ वाली जगहों में, मेट्रो बड़ी शहरों में, वहाँ पर कोई ना कोई मेथड हमें क्रिएट करना पड़ेगा। वी नीड टू क्रिएट ए मेथड टू कैप्चर द रेन वाटर। और वो ज़्यादातर कैसा होता है, वो अंडरग्राउंड, क्योंकि कंजस्टेड है तो ज़मीन के नीचे पानी को स्टोर करते हैं, रेन वाटर को। तो इसके लिए क्या है, हम रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ करेंगे। रूफ टॉप मीन्स बारिश का पानी छत पे जो भी आएगा उसको कलेक्ट करेंगे। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन सच मेथड। हेयर क्या काम करने हैं आपने, ग्रीन कलर से मार्क हैं ये स्टेप्स। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एट द रूफ टॉप। तो यू कैन सी इन द डायग्राम हेयर, रूफ टॉप में यहाँ पर पानी जो है पाइप से आकर के अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में कलेक्ट हो जाएगा। थ्रू पाइप्स दिस वाटर कैन बी ट्रांसफर्ड टू टैंक्स, पिट्स और स्मॉल वेल्स में चला जाएगा। Now since the water is very likely to get impure, it should be used for household purposes only after filtration and purification. घर के काम के लिए, हाउस होल्ड पर्पसेस, घर के काम के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स है, या ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए है, किचन में यूज़ के लिए है, फॉर क्लीनिनेस पर्पस के लिए है। तो थोड़ा, या ड्रिंकिंग के लिए स्पेशली, तो उसको फ़िल्टर और प्यूरीफाई करना पड़ेगा। तो इसमें फ़िल्टर भी हम लगा लेते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम कि जो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक से आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, यहाँ डायग्राम में देखिए, इट कैन बी यूज्ड। नाउ इम्पोर्टेंस क्या हुई रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन सप्लीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन सिटीज़। सप्लीमेंट मीन्स एडिशनल, क्योंकि शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा है, सिटीज़ में तो पानी की कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सप्लीमेंट कर सकता है, असिस्ट करेगा। एंड रेज द सब सॉइल वाटर लेवल। दूसरी इम्पोर्टेंस क्या हुई कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो सब सॉइल वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। ज़मीन के नीचे भी पानी होता है जो कि प्लांट रूट्स, ट्री की रूट्स को मिलता है, या आप हैंड पंप के थ्रू उसको लिफ्ट करते हैं, तो उसका लेवल भी ऊपर होगा। नहीं तो पानी नीचे से नीचे चला जाएगा और टाइम आएगा ख़त्म हो जाएगा, यानी रिचार्जिंग हो जाती है वाटर की लेवल की। तीसरा, दिस कैन हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीनरी इन अर्बन एरियाज़। तो पानी की कमी है शहरों में, तो अर्बन एरियाज़ में ग्रीनरी भी चाहिए, पॉल्यूशन बहुत होता है, पेड़ों को पानी चाहिए, तो ग्रीनरी मेंटेन हो सकती है अगर आपके पास पानी अच्छी क्वांटिटी में है तो। So this is the importance of rainwater harvesting. Now you see, if rainwater is not collected, अगर नहीं collect करेंगे, what will happen? It flows down to the rivers situated far away through the drains and is thus not available for immediate use. तो हमें मिल ही नहीं पाएगा, वो वहाँ से बह करके चला जाएगा पानी, ठीक है। तो उस जगह का ना वाटर लेवल इंक्रीज होगा, ना स्टोर कर पाएंगे पानी को आप। Now you see, the rainwater that falls on the road या कंक्रीट एरियाज में, पक्की जगहों पर, वो तो नालियों से बह करके चला जाता है, ठीक है। द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द अनट्रीटेड ग्राउंड। अनट्रीटेड ग्राउंड कौन सा हुआ, जो पक्का नहीं है, जहाँ आपको ओपन स्पेस नज़र आ रही है, चाहे घास है, चाहे वहाँ मिट्टी नज़र आ रही है, दैट इज़ अनट्रीटेड ग्राउंड। वहाँ पर क्या होगा, द वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। तो पानी जो है ग्राउंड में नीचे जाएगा, बह करके नहीं चला जाएगा जैसे नालियों में चला जाता है शहरों में। तो हमें क्या करना पड़ना है, इनोवेटिव वाटर कलेक्शन मेथड्स नीड टू बी यूज्ड
in different areas to collect and use रेन वाटर। तो इनोवेटिव मेथड्स होने चाहिए रेन वाटर के लिए। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ पे एक वेल सा बना हुआ है और यहाँ पर इसमें भी पानी स्टोर हुआ है। यहाँ पर रेन वाटर आसपास के इलाके का क्योंकि कच्चा है, आसपास मिट्टी है, अनट्रीटेड ग्राउंड है, तो यहाँ पर वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और यहाँ से जब ज़रूरत होगी तो पानी को यूज़ किया जा सकता है। नाउ इट्स वेरी सिंपल एक्टिविटी। आप घर पर एक काम कर सकते हैं, एक पोस्टर बना सकते हैं, हार्वेस्ट वाटर टू हार्नेस लाइफ। Think of some innovative ways by which use of water and its wastage can be minimized at school and at home. You can discuss it with your family members, your friends, कि हम कैसे पानी को अलग अलग जगहों पर सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। इनोवेटिव वेज होते हैं कुछ नए अलग हट करके। So make a poster on harvest water to harness life. So we have seen the one important biotic component of the environment, that is water, and we will study air. Till then you revise it.